ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਡਰਾਈਵ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਆ ਔਰ ਇਹਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵ ਹੋਣਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ define electric potential difference and drive an expression for electric potential difference between two points। ਜੇ difference ਕੱਢਣਾ ਤੇ ਦੋ values ਵਿੱਚ ਕੱਢਣਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੋ points ਦੇ ਵਿਚਲਾ difference find out ਕਰਨਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੋਰਸ ਚਾਰਜ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆ ਦਿਸ ਵਨ Q ਇੱਕ ਸੋਰਸ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਦਿਸ ਵਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਸੋਰਸ ਚਾਰਜ, ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਪਤਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਪਤਾ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ A ਜਿਹੜਾ RA ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੈ ਔਰ दूसरा पॉइंट B जेड़ा B दूरी ते है RB दूरी ते है, RB दूरी ते दो पॉइंट हो गए साडे कोल। ओके, और B पॉइंट का पोटेंशियल मैं लिखदा BB और A पोटेंशियल लिखदा BA। A पॉइंट का पोटेंशियल है, B पॉइंट का आ वाला पोटेंशियल ज्यादा होएगा, आ वाला पोटेंशियल घट होएगा, क्योंकि सानू पता कि पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। ठीक है, हुण कि जे मैं बोल रहा कि पोटेंशियल डिफरेंस की होएगा, मतलब इलैक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, वो इस तरीके ना सी पहला एक्सप्लेन कर लेने कि इलैक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की होएगा, दैट्स अ वर्क डन to bring the moving a charge, moving a unit as charge from B to A upon test charge, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਵਰਕ ਡਨ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ। ठीक है, बट आप लिखते हैं डेल्टा V इज द इलैक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। डेल्टा V रिप्रेजेंट द पोटेंशियल डिफरेंस और वो की है A माइनस B, और वो कादे इक्वल लिखांगे असी कि W असी कितना वर्क कर रहे हैं किथों B तो चार्ज A तक कर लियाउण लई अपॉन लैके किहनू आना Q नॉट नूं, मतलब Q नॉट ये साडे कोल यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਉਸ ਨੂੰ B ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ A ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਵਰਕ ਡਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਯੂਨਿਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ ਤੇ, ਉਹ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੋਊਗਾ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ may be defined as the amount of work done to move moving unit positive test charge from one point to other, एक पॉइंट तो दूसरे पॉइंट तक कर लेके आने, और अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स ਜਿਹੜੀ ਉਹ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਉਹਦੇ अगेंस्ट। ठीक है, और ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚਾਰਜ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ और कंसिडर मान लेते हैं टू consider a charge Q at point O and A, B are 2 points at distance RA and RB। ओके, इस तक कर साडी कहानी। ठीक है ना मेरा बेटा, हम सभी फिर एक बार दोबारा गल करते हैं कि इलैक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की है। इलैक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस मतलब कि सोर्स चार्ज है, ਉਹਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਹੋਏਗਾ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈਂਦੇ ਆ, K ਲਿਆ ਇੱਕ B ਲਿਆ,
ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿਚਲਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਪਾਂ ਡੈਲਟਾ V ਲਿਖ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਡੈਲਟਾ V ਕਾਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ, ਮਤਲਬ A ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮਾਈਨਸ B ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਲਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਉਹ ਕਾਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ may be defined as the amount of work done, ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ B ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਯੂਨਿਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ ਨੂੰ, work done to moving unit positive test charge from B point to A point, B point to A point तक या from one point to another point against the electrostatic field of force, against the force या field ਦੇ against लेके जाना है। ये साडा की है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, जे मैं हुण डेल्टा V फाइंड आउट करना चाहता तो मैंने वर्क डन करना पैना B तो A तक। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ let a small work done take place in moving, ਅੱਜ ਦਾ ਹੀ ਪਿਛਲਾ ਆਰਟੀਕਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੇਮ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੇਮ ਉਦੀ ਚੱਲਣਾ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ let a small work done take place in moving unit positive test charge from P to Q। मान लेने कि स्मॉल वर्क डन किया आपने चार्ज ਨੂੰ मूव कराने लगे, मान लो कि dr डिस्प्लेसमेंट की, फोर्स पॉजिटिव चार्ज Q नॉट इत्थे ले आवांगा और इत्थों लियाउंदे होए राज कोई स्मॉल वर्क डन किया P तो Q तक का dx डिस्टेंस ऑफ फोर्स इदा बाहर ਨੂੰ लगेगी। ठीक है, ओके, स्मॉल वर्क डन कर रहे हैं आप P तो Q तक और मान लेना ये गल कि P तक दी डिस्टेंस कितनी है r, P तक दी डिस्टेंस कितनी है r। Now let a small work done take place in moving a unit positive test charge from point P to Q by small displacement dr, और small displacement की थी अपने dr। Okay, then small work done। Okay, small work done सानू पता कि वर्क का इक्वल होना फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डॉट प्रोडक्ट हटा के अपन सारे ने पता कि अपन की लगाना cos थीटा। हुन इत्थे ख्याल इन दिस पॉजिटिव चार्ज ਨੂੰ रिपेल कर रहा है इधर ਨੂੰ, डिस्प्लेसमेंट कर रहा है उधर ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਬਣੇਗਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ 180 डिग्री। इन दिस angle between F and dr is 180 degree। ਇਹਦਾ मतलब dw f dr cos 180, और cos 180 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਹੋਊਗੀ -1, then work done ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ -f dr। ओके, नाउ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਫੋਰਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ Q ਨॉट ਚਾਰਜ ਤੇ P ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ। ਫੋਰਸ ਐਕਟਿੰਗ on the charge Q naught at point P due to Q, sorry, okay, due to charge Q। Okay, now work done, force करनी, force सानू सारे पता मैग्नीट्यूड कट रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, फोर्स कर रहे कहते हैं बेटे Q नॉट एंड Q दे बिटवीन Q एंड Q नॉट, और Q नॉट दे विचली दूरी कितनी r द स्क्वायर। ओके, जे मैं फर्स्ट इक्वेशन लिखां, देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन दे विच आपां पुट करांगे ते साडे कोल स्मॉल वर्क डन कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन r स्क्वायर नाल dr ते मोरे साइन का नेगेटिव सही करके माइनस का साइन। ठीक है, ओके, नाउ ये साडे को स्मॉल वर्क डन आ, पर ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ वर्क डन फाइंड आउट करना कित्थों कित्थे तक B ਤੋਂ A तक, मतलब चार्ज ਨੂੰ मूव करना B पॉइंट तो A पॉइंट तो, then net work done, then total work done in moving charge Q naught from कित्थों कित्थे कर लेके जाना B to A। हुण सानू पता है कि जे असी नेट वर्क डन फाइंड आउट करने जा रहे हैं ते नेट वर्क डन सानू इंटीग्रेशन करनी पड़ी, कित्थों कित्थे कर लेके जा रहे हैं, याद रखना असी B to A चार्ज लेके जा रहे हैं, इस करके इंटीग्रेशन कित्थों कित्थे कर चल जानी
आर बी दूरी तो आर ए दूरी तक -1/4πε0 Q0 बाय आर स्क्वायर डी आर 1/4πε0 कांस्टेंट Q कांस्टेंट Q0 कांस्टेंट चक के बाहर वेरिएबल साडे कोल इत्थे आर -1/4πε0 इंटीग्रेट आर बी तो आर ए सॉरी Q0 भी बाहर लिखने आर बी तो आर ए 1/r स्क्वायर डी आर। मैं सॉल्व करके फिर रब कर दूंगा पूरा वर्क डन क्योंकि सीधी मैं वैल्यू पुट कराना। हुण मेरे पास आ वाली वैल्यू बची है और मैं वैल्यू होना इस चीज तो कि इंटीग्रेशन जो मैं की करांगा इनू चक के ऊपर ले जाऊंगा, ऊपर जाके माइनस दी हो जाएगी। हुण साडे कोल फार्मूला इंटीग्रेशन दा की है साडे पास कि आर दी -2 + 1 ऊपर एक जोड़ देना ते -2 + 1 कित्थों आर बी तो आर ए तक -2 + 1 साडे पास की बन जाएगा Q0 आर दी -1 अपॉन -1 आर बी तो आर ए तक माइनस माइनस इतने बार माइनस 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 प्लस हो जाएगी 1/4πε0 Q0 ते इनवर्स थले आके 1/r हो जाएगा आर बी तो आर ए तक अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1/4πε0 Q0 देन अपर लिमिट पुट करते ब्रैकेट आ जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ओके दैट्स आवर इंटीग्रेशन जड़ी असी इस वैल्यू ਨੂੰ इंटीग्रेट कर देना साडे कोल आ वाला रिजल्ट आना तुसीं नोट कर रखते हो। ठीक है हुण मेरे पास की बचे वर्क डन 1/4πε0 Q0 आर ए माइनस 1/r बी देन पोटेंशियल देन असी पोटेंशियल कढना मैं सारी वैल्यू लिख देना इत्थे आफ्टर इंटीग्रेशन मेरे पास सॉल्व करते वर्क डन आया 1/4πε0 Q0 दिस वन 1/r a माइनस 1/r b मेरे पास ही बचे। ठीक है ओके नाउ मैं करना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस मतलब डेल्टा वी और डेल्टा वी कादे इक्वल 2 पॉइंट कितना वर्क डन कीता b तो a तक कर इथे भी इंटीग्रेशन b to a इथे लिख सकते b to a b to a b to a b to a और b to a अपॉन Q0। नाउ मैं वैल्यू पुट करांगा अपने वर्क डन दी 1/4πε0 आ वाला रिलेशन देखो वर्क डन b to a अपॉन Q0 आ वाली वैल्यू मैं एक्सप्रेशन इथे ले लिया देन दिस वन इज द Q0 1/r a माइनस 1/r b अपॉन Q0 ना Q0 की हो गया कैंसिल देन मेरा वर्क डन पोटेंशियल डिफरेंस बचा 1/4πε0 Q0 into 1/r a Q0 कैंसिल हो गया 1/r a बटा 1/r b दैट्स आवर रिजल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इजी है साडा टॉपिक मतलब जिसने पहला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बड़ा टॉपिक देखा हुआ है साडी प्रीवियस वीडियो मेरी पाई जड़ी हो तो तुसीं जाके देख सकते हो ते ये भी आर्टिकल सेम ओदे वांगू कीता होया। पिछले आर्टिकल च आपां वर्क डन लियाएगा इनफिनिटी टू दैट पॉइंट ठीक है एक पॉइंट दे पोटेंशियल फाइंड आउट करना इथों हुण बी पॉइंट टू ए पॉइंट तक करना मतलब फिर दोबारा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस सिंपल दो पॉइंट दे जेड़ा पोटेंशियल है ओदा डिफरेंस फाइंड आउट करना जिथे ज्यादा है उचों घट वाला माइनस कर दो। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਲਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਵਰਕ ਡਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿਸੇ B ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ A ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ।